बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे, तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत। Applause. A big round of applause as we join the inaugural of 12 formally inaugurated. For Law and Justice, Government of India, Professor Research Organization ISRO, Dr. K. Sivaji. Dr. Anil Prakash Joshi. Chief Executive Officer, Director of Classical Vocalist, Srimati Kaushiki Chakrabarti, and last but not the least important, mainly this Bengal of 10,000 plus students. In the year 2005, Sri Rahul Vishwanath Karat established MIT with the aim that educated youth like you should come to take this great vision of MIT School of Government on the national canvas, namely Bharatiya Chhatra Sansad, the biggest classroom of the Bharat. The 12th Bharatiya Chhatra Sansad is a great journey in our tradition of Tapa, that is Tapasya of long 12 years, and a big for the nation building and making Bharat the strongest democracy on the earth. And he thought that India is the right place to implement the space technology for societal applications. What he did was, India is a vast country and 75% of the people are staying in the rural area. For India to develop, the advanced technologies have to reach the rural area. And Professor Sarafai was thinking space technologies as a tool we can use effectively for taking the advanced technology to the rural area. Only thing is how to do it. The technology is not with us, it's with outside country. Before that, I wanted to ask you, the space technology, do you know where it is started? How many of the students who are knowing where this is the space technology started? In fact, space technology started 250 years back in India itself. India was the first country to make use of rocket for working against a British army. This technology was taken to Germany, England. From England, it has gone to Germany. From Germany, it has gone to USA. From there, it has gone to USSR. Finally, very interestingly, we are going and buying the technology from them. Our own technology, we are given to them, and we are buying from them with a cost. This is a very interesting feature. Okay. Now, once that the technology is required for benefiting the India, how to do it? It is available in the elsewhere. If we are taking the technology from there, it is very, very costly. It is हमारे हालात हैं और जिस मॉडल को हमने अपनाया, वेस्टर्न मॉडल, पश्चिमी देश का विकास का नारा, आज उसी यूरोप में 41 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो चुका। बोलिए किसको माने? वहां तड़प गए हैं लोग। 60% यूरोप सूख गया है। बोलिए किसका नारा लगाना है? आपको सोचना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, और राहुल जी का मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं, इस देश को भारत ज्यादा कहो, इंडिया कम, क्योंकि इंडिया में कहीं पश्चिमी झलक है, भारत में इस देश की झलक है। ये समझना होगा। और सत्य ये भी है कि अगर हम ये कल्पना कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री बार बार इस देश को दुनिया की चरम में ले जाना चाहते हैं और इस देश को फिर एक बार गुरु का दर्जा देना चाहते हैं। प्रणाम है उनकी इस भावना के लिए। पर सवाल अब ये भी है कि हम आधे अधूरे न रहें।
हम इकोलॉजी के साथ, इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी की भी सोचें। हमारी इकोनॉमी, इकोलॉजी इंक्लूसिव होनी चाहिए। मैं बहुत सोचता हूँ, मुझे लगता है कि शिक्षा और उद्योग, ये दो घराने ऐसे हो सकते हैं जो इस बड़े परिवर्तन को ला सकते हैं। वो इकोलॉजी, इन्वायरमेंट के बारे में भी अगर साथ साथ सोचेंगे तो हम जिस इनसिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं वो सिक्योरिटी होगी। और ये देश जहां हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को देव कहा जाता था, जहां भगवान विष्णु समुद्र के तले में बैठते थे और भगवान शंकर हिमालय की चोटी में, पवन सुत हनुमान, ये सब हमारे परिचय थे प्रकृति के प्रति। प्रकृति और प्रभु में कोई अंतर नहीं है, इस देश ने समझाया और बताया है। शायद इसकी समझ अब एक नए सिरे से बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप ये मान के चलिए हम किसी भी बड़े पद में पहुंच जाएं और हवा, मिट्टी, पानी अगर हमारे बीच में से चला गया तो हम कहाँ जाएंगे। और इसी भावना से हमने अपने यहाँ ये जीडीपी की रट के अलावा हमने कहा एक जीईपी भी होनी चाहिए, ग्रॉस। पॉलिटिक्स इज अ डिसीजन मेकिंग। हर घर परिवार की भी वीक में 10 डेज में कोई मीटिंग होती है, तो हम साथ में आके क्या क्या होना चाहिए घर में एक कलेक्टिव तरीके से, ताकि हमें कंफर्ट हो और हमें एक ऑर्डर में हमारी लाइफ हम जी सके। इसके लिए पॉलिटिक्स, ये इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ दैट वी शुड नॉट फॉरगेट। बट राजनीति के प्रति हमारे सबके मन में बहुत दुराग्रह है, और इसी बात को एक पॉजिटिव तरीके से समाज के सामने रखने के लिए हमने 2005 में कि भाई इट इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ इंडिया टू डेवलप द फ्यूचर पॉलिटिशियंस, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, और उसके माध्यम से भारतीय छात्र संसद का निर्माण, नेशनल वुमेन पार्लियामेंट का निर्माण। और मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूँ कि हाउ डू वी कनेक्ट ऑल आवर डिग्री प्रोग्राम विद द सोसाइटी, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, यू नो। और एंड अपने भारत का एक बहुत यूनिक आइडेंटिटी है, और जो इवोल्यूशन है स्वतंत्रता के बाद का और उसके पहले का भी हमारी पूरी अगर बैकग्राउंड हम जब देखते हैं तो we do not have to copy the West all the time, United States or some other countries. So we have very unique model, my dear friends. With that purpose, MIT School of Government is playing very important role. मैं भारत के सभी, बागेल साहब, मैंने भारत में लोकसभा की लाइब्रेरी आपकी बहुत अच्छी है, बट आपने भारत की विधानसभाओं की लाइब्रेरीज और एजुकेशन सेंटर्स कहाँ पे? ये विवेकानंद का शब्द है 1893 का, और जहाँ विवेकानंद ने दुनिया को, when we were under the clutches of the British, 1893 के बाद 1897 में कहा है, and he had made a prophecy. Vivekananda tell the world that time to remember that my mother India, which is under the clutches of the British, is going to get free from the clutches after 50 years from today. 1897 add करो 50 साल, it comes to 1947. विजन बोला जाता है, इनसाइड बोला जाता है, ये दृष्टा पुरुष बोला जाता है, दिखाई देता है भाई भविष्यवाणी। और उसी तरह से ये हुआ और भाषण हुआ है कि नाउ इंडिया हैज़ अ रोल टू प्ले। क्या रोल है मेरा? टू शो द पाथवे ऑफ हार्मनी एंड पीस टू मैनकाइंड। दुनिया को सुख, समाधान और शांति का मार्ग दिखाने का दायित्व मेरे भारत माता का। माई मदर इंडिया, गर्व नहीं, स्वाभिमान। स्वत्व, स्वाभिमान और स्वधर्म, 3 शब्द है। स्वधर्म है, स्वाभिमान है और स्वत्व है। तीनों जगह के रखो भाई, समझ तो लो आप किसकी संतान हो, क्या कुल है आपका, और कुलीन कन्या और कुलीन सुपुत्रों का देश है ये सारा। अभी वक्त आ गया है दुनिया के सामने दिखाने का, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना द वर्ल्ड हैज़ रियलाइज, वो जो अल्टीमेट है ना, जिसे ईश्वर कहा जाता है, जिसे गॉड भी कहा जाता है। ईश्वर का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, ईश्वर का मतलब शक्ति है भाई, शक्ति, एनर्जी है। इट्स इनविजिबल। ये तो साइंटिस्ट है ना, अपन समझ सकते हैं। तो इसकी दिशा में जाने का प्रयास है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे वाइस चांसलर चिटनीस मिलिंद पांडे, and especially Rahul and his team, who has been trying to promote this cause and organizing this
National Students' Parliament has a deep-rooted passion and fire to show the pathway. ये लीडरशिप बनाना, नेता होना, राजनीति की बात करना, लेकिन राजनीति का सही मकसद क्या है? ये समाज का कल्याण, समाज का हित, विश्व शांति की बात, विश्व कल्याण की बात, ये भारत का दायित्व है। वो रास्ता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र को और मजबूत किया है, महिला सशक्तिकरण को। कालाहांडी वाला राज्य उड़ीसा, जहां भूखमरी से कभी कांग्रेस के जमाने में लोग मरते थे, उड़ीसा पिछड़ा राज्य, उसमें सबसे पिछड़े आदिवासी और आदिवासियों में सबसे पिछड़ी महिला, और अंतिम पायदान पर खड़ी हुई एक आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति बना करके राजनीतिक अंत्योदय करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मान्यताएं बदली हैं, डेमोक्रेसी की भी मान्यताएं बदली हैं और पद्म पुरस्कारों की भी बदली हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, महिला हर जात की पिछड़ी होती है और आदिवासी की तो बहुत पिछड़ी होती है। पद्म पुरस्कारों की मान्यताएं बदली हैं। पहले लोग सोचते थे कि जो बर्बरी का पर्स लेके चलते हैं, एलबी का पर्स रखते हैं, राडो की घड़ी पहनते हैं, रेबन का चश्मा लगाते हैं, ऋतु बेरी के कपड़े पहनते हैं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, यू नो करके फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, पद्म पुरस्कार उन्हीं के हिस्से में आएंगे। ये नरेंद्र मोदी ने मान्यता बदल दी है। अब पद्म पुरस्कार भारत में वो लोग भी पाएंगे जिनके पास राष्ट्रपति भवन जाने के लिए एक जोड़ी चप्पल नहीं हुआ करती थी। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैं अच्छे नेतृत्व को खतरा है, लेकिन मैं जब भी मेरिटोरियस बच्चों के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में पिछले 24 साल से जाता हूं तो धीरे से कान में पूछता हूं, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, साइंटिस्ट, सीए। एक बच्चे ने आज तक नहीं कहा कि मैं एमपी और एमएलए बनना चाहता हूं, मैं सीएम और पीएम बनना चाहता हूं। आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं कहा। और बीच के कालखंड में किसी ने यह भी नहीं कहा था कि वकील बनना चाहता हूं। शुरू के कालखंड में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू, सरदार पटेल बैरिस्टर थे। बीच में जिसका कहीं एडमिशन नहीं होता था वो लॉ में लेता था। लेकिन मुझे आज खुशी है कि इस पूना में ही इतने अच्छे लॉ कॉलेज हैं कि आज चौथी बच्ची कहती है मैं एडवोकेट बनूंगी। ये भी जुडिशरी को मजबूत करने के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए एक स्तंभ यहां से मजबूत हो रहा है। शायद इस 3 दिन की छात्र संसद में किसी बच्चे में राजनीति के प्रति जिज्ञासा पैदा हो। तो मुझे लगता है कि अगर एक भी बच्चे में, पढ़े लिखे बच्चे में राजनीति के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई तो अच्छा नेतृत्व मिलेगा, जो आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी, ये भी कहना चाहूँगा, छात्र संसद से आप डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं, लीडरशिप को निकालना चाहते हैं, तो एक शेर याद आ रहा है मुझे कि बहुत ख्याल रखते हो परिंदे का दाना पानी का, इतने ही अच्छे हो तो परिंदा खोल क्यों नहीं देते, पिंजरा खोल क्यों नहीं देते। अगर आप वास्तव में लीडरशिप को डेवलप करना चाहते हैं तो अपने विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव करवा दो। और छात्र संघ के चुनाव में जब इस कैंपस में जिंदाबाद, मुर्दाबाद और विदेश नीति पे, राजनीति पे, आंतरिक नीति पे, जल नीति पर, डिफेंस नीति पर भाषण देके जब बच्चे चुनाव जीतेंगे तो देश की संसद को अच्छा नेतृत्व मिलेगा। तो अच्छे नेतृत्व की कमी के पीछे ये भी है कि विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में आजकल स्टूडेंट यूनियन के चुनाव बंद हो गए। मिस्टर चतुर्वेदी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने लॉ साथ में की है। मैंने पुलिस बिरला साहब, अनिल अंबानी साहब, विजय माल्या साहब, अमर सिंह साहब जब एमपी बने तो मैंने वो भी पैसा कमाना भी छोड़ दिया। इसलिए देश की हर विधा का, इसरो के बैठे हैं लेकिन एटॉमिक एनर्जी के राजा रमन्ना साहब हमारे यहाँ एमपी बन कर के आए थे। मैं अभी बहुत से फील्ड छोड़ रहा हूँ, स्वामीनाथन साहब और कस्तूरी रंजन साहब। इसलिए बच्चों, जब ये सारे लोग 35 साल गुजारने के बाद
राजनीति में आए हैं, मैं सीधे सीधे पीली चिट्ठी लेकर के आपके लिए आया हूं कि फिल्मों में जाने से पहले, क्रिकेट में जाने से पहले, उद्योगपति बनने से पहले, फूलन देवी की तरह डकैत बनने से पहले, अथवा बड़ा वकील बनने से पहले, या CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंगनाथ मिश्रा और गोगोई बनने से पहले सीधे सीधे पॉलिटिक्स में आ जाओ। ये मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में आया हूं और यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत भूमि का एक टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। बंगाल और पंजाब इसके दो मजबूत कंधे हैं, कश्मीर इसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर इसकी जटाएं हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी दो जंघाएं हैं, विंध्याचल इसकी कमर है और नर्मदा इसकी गर्दनी है, कन्याकुमारी इसके पैर हैं, कंकर इसका शंकर है, सूरज और चांद इसकी आरती उतारते हैं। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। हम जिएंगे इसके लिए और हम मरेंगे इसके लिए। राहुल जी की एक बात का जवाब जरूर देना चाहूँगा कि आप इंडिया को भारत चाहते हैं, मैं भी इससे अपने को संबद्ध करता हूँ, मैं संबद्ध करता हूँ, लेकिन लोक भाषा पर ध्यान दीजिए, लोक भूषा पर ध्यान दीजिए, लोक भोजन पर ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी रुतबे की भाषा है, माध्यम की भाषा है, नौकरी की भाषा है। कृपया घर में मत आने दो। घर में मराठी बोलो, कन्नड़ बोलो, तेलुगु बोलो, हिंदी बोलो, तमिल बोलिएगा, भोजपुरी बोलिएगा। आप जिस भारत की बात कर रहे हैं उसको खतरा कितना है? कुत्ते के साथ अंग्रेजी बोली जा रही है, लूसी गो, लूसी सेट। एलीट क्लास की दादियां और नानियां अपने न्यू बॉर्न बच्चे के साथ अंग्रेजी में बात करती हैं और आप भारत की बात कर रहे हो। इसलिए पिछले 63 साल से भारत सरकार चुनता था और इंडिया सरकार चलाता था। ये 8 साल से भारत सरकार चुनता है और भारत ही सरकार चलाता है। इसलिए 12 का बीमा, 30 का बीमा, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास, ग्रामीण आवास, शहरी आवास, ये सब हम लोग दे रहे हैं। आपके भारत के लिए एक बात कह दूं, खूबसूरत नर्स से बदसूरत माँ हमेशा अच्छी होती है। इसलिए हमारी हिंदी, हमारी मराठी, हमारी कन्नड़, हमारी तमिल, हमारी तेलुगु, ये हमारी माँ हैं, भले ये थोड़ी सी खूबसूरत ना हो। तो भारत जब मुकम्मल करना चाह रहे हो, इसलिए भी करना है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म को बहुत सारे खतरे हो गए हैं। 1191 में तराई के युद्ध में हम जीत गए, 1192 में हार गए। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक गुलाम के गुलाम गोरी ने हमको गुलाम किया, फिर उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर उसके गुलाम इल्तुतमिश ने, फिर उसकी लड़की रजिया ने, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, फिर औरंगजेब को भी इस महाराष्ट्र को झेलना पड़ा। इसलिए सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा और भारत को, जम्बू द्वीप को खतरा पहुंचा है। फिर लॉर्ड मैकाले आ गया, अंग्रेजी आ गई, तो ये खतरे हैं। इसलिए मैं जो चाहता हूं बच्चों से, वो शेर के साथ समाप्त करता हूं, जो वीसी साहब ने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा था, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन भी होना चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, पर यह आग। उन्होंने अपनी प्राथमिकता में संपत्ति बहुत ज़्यादा खरीदने की जगह उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। आपके बैनर पर पीछे में देख रहा था, लिखा हुआ है डेमोक्रेसी, लीडरशिप और गवर्नेंस। ये आपका मोटो है। परिभाषा भी किसी ने अब्राहम लिंकन की कही थी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता का राज, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अमेरिका कहता है कि हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हम कहते हैं हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। मैं अमेरिका की इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं। पता नहीं उनके यहाँ सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग का कंसेप्ट है या नहीं, हमारे यहाँ है। द्वापर को गुजरे हुए 5400 साल हो गया है, तो सोचिए कि त्रेता को कितने लाख साल हो गए होंगे। हम ही ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं, क्योंकि त्रेता में भगवान राम का जब राज्य था
तब मुकम्मल डेमोक्रेसी थी। अंतिम अनुसूचित जाति का धोबी व्यक्ति वाशरमैन राजा की रानी के खिलाफ विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का फायदा उठाते हुए एक कमेंट करता है और राजा उसको स्वीकार करता है और अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा करवाता है जब अमेरिका अस्तित्व में भी नहीं था। तो वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी आल्सो। ये बीच में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, राजतंत्र आया है। आप लीडरशिप की जो बात कर रहे हैं, हमने तो विश्व को लीडरशिप दी है। ऐसे ही एक धर्म संसद में विवेकानंद जी ने बहनों और भाइयों ही कहा था, उसमें 3 मिनट तक ताली बजी थी, क्योंकि वो लेडीज एंड जेंटलमैन वाली कल्चर वाले लोगों ने पहली बार बहनों और भाइयों सुना था। ऐसी हमारी लीडरशिप है। और गवर्नेंस, जो आप तीसरा शब्द कह रहे हैं, अभी भी दुनिया का सबसे अच्छा राज्य राम राज्य कहलाता है, जो भारत में हुआ। इससे अच्छी गवर्नेंस क्या हो सकती है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा, जिसमें किसी भी प्रकार का कष्ट जनता को नहीं होता था और भेड़ और शेर एक घाट पे पानी पीते थे। This platform was created by the leaders of tomorrow, was conceptualized by Mr. Rahul Karad way back in 2011, which has been instrumental in sensitizing the youth of today to take up democratic leadership. Thousands of selected student leaders eagerly participate in such a unique conclave every year, only because of this sanctity of the thoughts behind such an apolitical platform which talks about strengthening the democracy. The MIT School of Government, started by Mr. Rahul Karad in 2005, happens to be Asia's first school to train and develop future political leaders. It's praiseworthy that the Institute has taken up the mission of ensuring that the educated youth must join active politics. I sincerely hope that this initiative fulfills its objectives and that institutions like the MIT World Peace University continue their dedicated efforts towards nation building. Standing here, addressing you from the Swami Vivekanand Sabha Mandap, named after a distinguished spiritual leader and a social reformer, I recall one of his queries: believe in yourself and the world will be at your feet. I too have a few mantras for the youth who aspire to be a leader. The first step is to work hard. The second is also to work hard. And the third is also to work hard. It always pays. And most important, believe in yourself. You can do it. The way to inspire others is to know what motivates them. What helps is asking, listening, and building trust. Leaders don't choose their followers. Followers choose them. A great leader will take his people along. The responsibility lies on your shoulders, the able shoulders and the strong shoulders, that the future generation, the students who are sitting here, it is with you. As a student of philosophy, I read this line from the great philosopher Descartes: I think, therefore I am. But for me, it's slightly different. I sing, therefore I am. So let's talk about what music makes me. Because I sing, therefore I am. Now, who am I? I am a very true Indian. I'm a true Indian, and in this platform, starting from this platform, I promise Rahulji, I'm an Indian, but going forward, I'm a Bharatiya. So being the Bharatiya that I am, what did I learn from music that makes me a true Bharatiya? It made me respectful towards my tradition. The concept of leadership, I think, is best conveyed with the concept of a guru. A guru, the word itself says, the first part of the word says darkness, and the second part of the word means light. So someone who brings you from the darkness of ignorance to the light of knowledge is a guru. And if this is not a leader, then who is?
And there's a Sanskrit shlok that I learnt as a student of music. Ajnanatimirandhasya jnananjanashalakaya chakshurunmilitam yena tasmai shri gurave namah. This is what music teaches me. Also, it teaches me to be secular, to be respectful to different caste and creed and religion and different shapes and sizes and colors of God that we worship and we bow our heads. Because in the same discipline of music, I learned Devi Durge Sanatani Mata Palika Sab Bhakatan Ki Devi Durge. Also, the next morning I would learn a different composition, which is Allahu Allah Jale Shan Mola Tero Naam liye mere hove tasalla. So this was not a part of a secular training system, education system. All these were learned through the discipline of learning music. नवनवीन बातम्या बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका.